Jai Hind students, you are studying on online platform of the L1 coaching, that is L1 Aspire app, and me myself Nagen Singh, your chemistry teacher. I have done BTech from IIT and I am teaching since last 15 years. And you guys are wonderful, amazing guys. You are more disciplined, diligent student for any teacher. You are like, for me, you all are like a club. So come on, let's enjoy the lecture number 10 for hybridization. And the chapter name is hybridization because we are just taking some of the concepts, some of the ideas from there. But actually we are just moving towards, we are following the track of organic chemistry, especially GOC. So most welcome to all of you and Jai Hind. So now in last class we have seen nucleophile and nucleophilicity and many things regarding that. I believe you all have understand it in better way. Okay. Now based on that, let's try this problem. It's a very easy question just to check whether study lecture was better or not, efficient or not. Just you guys can make it better. So let's see, arrange in increasing order of nucleophilicity. Just try this problem. Arrange in increasing order of nucleophilicity, A, B and C, increasing order, and time is 45 seconds. I need response from all of you, please. Just 45 seconds. Time starts now. Come on everyone. Whether right or wrong, I need response from everyone else. Wow, great. Yaar, Vishwajit and Rimjim, everyone, you guys have placed your answer in just 10 seconds, within 10 seconds. Oh, I'm fond of you all. Ankit, Chanda, great. Beautiful. Fabulous. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1 and 0. Now time is over. Wonderful. Very nice. You all are wonderful. Now let's see. Here we must focus that CH3 CH2M. So whenever carbon is bonded with metal directly, what I have said, directly, it is known as organometallic compound. Organometallic compound. So what I have said, it is post-Manbau. Post-Manbau means a word which is conglomerate of two, blending of two or more than words. So organometallic compound is post-Manbau. It is organo for carbon and metallic for metal. It is organometallic compound. Okay. So whenever carbon and metals have direct bonding, okay, great Aditya, it's an organometallic compound. Direct bonding should be there. And we must read a little bit, it's about that in this case, metal is since electropositive, it gives electron. So carbon will develop negative charge and metal will develop positive charge. And carbon positive is very dangerous, is dangerous. Why dangerous? Dangerous. Why? Because carbon is less electronegative and it have positive charge. Then what will happen? Carbon less electronegative means carbon does not possess capability to hold the electron. Carbon does not possess the capability to hold the electron and it has the electron. Then what will happen? Electron, it will become more reactive. So carbon negative, it is also known as carbanion, is very reactive. It's a very reactive. And specifically, if you talk about the chemical behavior, we will say it's a very strong nucleophile, as well as very strong base. So please don't forget it. Please place in your mind a very sincere way that carbon minus is a very reactive, because electronegation of carbon atom is very less, not very strong one. It's not electronegative. In fact, it's also non-metal, 2.48 in sp3 hybridization, and therefore carbon does not has the capacity to hold the electron, although it has the negative charge. Then what will happen? This negative charge lone pair will be reactive. Yes, come on.
सो इफ यू डू अंडरस्टैंड प्लीज से मी यस, है ना. सो C माइनस, सभी बच्चे कृपया इसको ध्यान दें, बहुत अच्छे सीखें. C माइनस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. अपने दिमाग में डाल लो. और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आर वेरी फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. ओके. नाउ एक बात और, अभी कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा इट ऑल डिपेंड्स किस मेटल से बॉन्ड बनाया है. मतलब यू नो इट डेवलप्स नेगेटिव चार्ज बिकॉज मेटल हैज गिवन इट्स इलेक्ट्रॉन. ओके. सो देयरफॉर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए. ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज आगे ये सब बातें होने वाली हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स. तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हम लोगों को अब नहीं करना है. सो व्हाट वी विल से, डायरेक्ट कार्बन मेटल बॉन्ड, कार्बन माइनस, है ना. सो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स रिएक्टिविटी बिकॉज कार्बन तो सब में कॉमन है. कार्बन विल बी कॉमन टू ऑल. कार्बन मेटल बॉन्डिंग, राइट, इट्स अ मेटल. So in all organometallic compound, carbon will be common, only metal will change. So more the metallic character means more electropositive character means lesser ionization energy means more tendency to give electron. Mole be with the negative charge here and therefore mole be with the reactivity. So reactivity is directly proportional to metallic character. सारे बच्चों ध्यान रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है, राइट. ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मैं हमेशा पढ़ाते समय इन सब बातों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा सो दैट यू ऑल हैव द बेटर आइडिया कॉन्सेप्ट. नाउ कुछ और बातें मैं शेयर करूं इससे रिलेटेड आपको. लेट्स सी, मैं एग्जांपल लेता हूं. इससे सोडियम हुआ, सोडियम, लिथियम, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल. सो अगर इससे कार्बन अटैच है तो वो जो R माइनस बनेगा वेरी वेरी रिएक्टिव, दैट विल बी यू नो रिएक्ट इन बहुत ही वैसा अटैक करेगा वो, मतलब अनकंट्रोल्ड अटैक कर देगा वो. उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी कि इट विल रिएक्ट अनकंट्रोल्ड वे, राइट. सो और उसके बाद है हमारा मैग्नीशियम हुआ. मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी मॉडरेट मानी जाती है, न कम न ज़्यादा, एंड देयर फोर इट्स वेरी यूजफुल एंड देयर फोर इट इज़ ग्रिगनार्ड रिएजेंट. विक्टर ग्रिगनार्ड ने इसको बनाया. ऑल्दो दिस वन इज ऑल्सो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, बट वाई इट इज़ more famous because of its controlled nature and its reactivity is not low, its reactivity is proper as we need, as we require. Therefore it's very important. Okay, now the last one, zinc, copper, cadmium. You know, I am just placing here the examples, the chemicals which are in our syllabus. So these are less reactive metal. So इनकी reactivity मतलब कम होती है, less reactive. रिएक्टिविटी होगी कैसे, न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह. इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा अनकंट्रोल्ड. बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स, कीप ऑन नोटिंग, कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, कीप ऑन फोकसिंग दिस कॉन्सेप्ट्स. मैग्नीशियम, विक्टर ग्रिगनार्ड, व्हाई इट इज फेमस बिकॉज इट्स अंडर कंट्रोल्ड रिएक्शन. दीज आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ लेस मेटेलिक कैरेक्टर. ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. और रिस्पॉन्स तो करो बच्चों, इस समझ में आया कि नहीं. देखो ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट माइनस और प्लस. ओके, सो C माइनस की वजह से इट्स ए न्यूक्लियोफाइल. ओके, ग्रेट. ये सारे क्वेश्चंस जो आइडियाज दे रहा हूँ आपको, सारे एग्जाम में आने वाले सवाल हैं. सो नाउ यहाँ देखो CH3O माइनस एंड Na प्लस. सो हियर इट इज O माइनस नॉट C माइनस, सो इट इज नॉट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. दिस वन इज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत बढ़िया. This one is both are nucleophile. You know, here O minus, here C minus. This one is N minus. Obviously, it's a nucleophile. So, nucleophilic character in increasing order. The least nucleophilic is obviously B because of O minus, then C, and the most one is A. So, answer will be B, C, A. और आप सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही किया है. ऋतिक कुमार C A B बोल रहे हो. ग्रेट. अभिषेक, बहुत अच्छा. कुछ लोगों ने, सौरभ तुम भी C, सबसे कम C क्यों बोल रहे हो यार आप लोग. ये N माइनस है. N माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन O माइनस. वी नो फ्रॉम मूविंग राइट टू लेफ्ट न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, एंड इसमें हम लोग मिला C माइनस. ओके, सो आंसर विल बी B, C, A. सबसे कम B और सबसे ज़्यादा A का हो गया. ओके, ओके, ग्रेट. नाउ
SN reactions concept. I'm not going to teach you another topic. Topic is hybridization. So how we can use the concept of hybridization in understanding SN reactions. Let's understand it. Great. ये SN reaction बोलते क्या है बच्चों? SN reaction. It's a एक्रोनीम, मतलब छोटा फॉर्म है इसका. इसका नाम क्या है? इसको उल्टा पढ़ते हैं उर्दू की तरह से. उर्दू उल्टा पढ़ते हैं ना हम लोग. उर्दू ऐसे लिखते हैं ना, नागेंद्र. ऐसे लिख दिया हमने, नागेंद्र, है कि नहीं? ये हो गया हमारा नागेंद्र. तो ऐसे उल्टा पढ़ते हैं ना. सिमिलरली यहाँ पे इसको हम लोग उल्टा इसको हम लोग पढ़ते हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज न्यूक्लियोफिलिक, इधर से न्यूक्लियोफिलिक, और आई हैव टोल्ड यू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. I have told you already that whatever be the name of reagent here, that will make attack on the group first. That will make attack first on the group. So you can understand in this way, or other way I will tell you later on. But you know, the nucleophile will attack on somewhere else, and reaction will be of substitution nature. Means one nucleophile will replace another one, right? So here nucleophile will be attacking group. So whatever be the name of reaction, attacking group, name of reaction is given on the basis of first attacking group. Keep in mind, name of the reaction is given on the basis of first attacking group. You know why? Because first attacking group reveals your mystery. जिनसे आप पहली बार मिलते हो, जैसे सपोज करो अभी आप स्टूडेंट हो, तो अभी आपको जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में आपका विकास देखना चाहते हैं, उनको आपसे प्यार है, वो आपको भला करना चाहते हैं. लेकिन सपोज यू हैव बिकम, आफ्टर सम टाइम यू वुड बिकम अ ग्रेट मैन, आई मीन डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, कुछ एंटरप्रेन्योर, व्हाटएवर. अब आपसे जो लोग प्यार करते हैं वो आपसे नहीं, आपकी सफलता से प्यार कर रहे हैं, राइट? तो जो आपसे अभी प्यार कर रहे हैं वो ओरिजिनली आपको चाहते होंगे, भले आपके भाई बहन, माता पिता, हुएवर दैट माइट, दोज ग्रेट पर्सन्स में भी. तो सिमिलरली जो पहला अटैक करता है वो उस सबस्ट्रेट की पोल खोलता है. वो जो लोग अभी आपको चाहते हैं वो आपके लिए काम करते हैं. जो पहले आपसे अटैक करता है वो जिसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है उसकी खासियत बता रहा है. मतलब हम किसी को चीनी देने गए, मतलब उसको चीनी चाहिए, गुड़ देने गए मतलब उसको गुड़ चाहिए, मिर्ची देने गए उसको मिर्ची चाहिए. तो जो हम देने जा रहे हैं वो उसको चाहिए. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. इट मीन्स व्हाट? वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है. ये आदित्य राज कौशिक कर रहे हैं, दोनों एक साथ अटैक करें तो क्या कहेंगे? बहुत दुविधा में डाल दिए तुम तो आदित्य. हाँ, परेशान हो गया मैं. नहीं बेटा, ऐसा होता ही नहीं है कभी. क्योंकि या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे. तो कमी होगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, राइट? तो समझ गए आप मेरी बात? बाय द वे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इट्स न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ग्रुप, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मीन्स वन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अनदर वन. नाउ लेट्स सी बच्चों, देयर इज अ रिएक्शन SL. मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे अपनी कॉपी में आप नोट करते जाओ. दिस वन इज अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, एंड हियर वी विल हैव द प्रोडक्ट इज S एंड न्यूक्लियोफाइल, एंड ये ग्रुप हमारा बाहर निकल गया. सो मैं पहले आपका इनसे परिचय करवा दूँ, धीरे धीरे नाम पहचानते हैं. तो नाम बताऊँ आपको. ये देखो सबस्ट्रेट हैं, ये सज्जन हैं, इनका नाम है सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट इज अ location site where attacking group makes attack. Okay, this is known as substrate. Okay, ये attacking group है, ये अटैक कर रहे हैं. this is attacking group, and this attacking group is here nucleophile. Okay, this one is, ये भगोड़ा है, भाग गया. जो भाग गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीविंग ग्रुप. आजकल एग्जाम्स में इन सब के ऊपर सवाल खूब पूछे जा रहे हैं. nowadays it's a trend. So this L is leaving group, S is substrate, and NU is the nucleophile. And these are all together known as reactant.
एंड ये ऑल टुगेदर नोन एज प्रोडक्ट, इन विच दिस वन इज नोन एज, ये लिविंग ग्रुप का एनायन है, एनायन ऑफ लिविंग ग्रुप, ओके, दिस वन इज लिविंग ग्रुप. सो आई थिंक आप समझ गए होंगे. सबस्ट्रेट इज अ साइट वेयर न्यूक्लियोफाइल मेक अटैक. एल इज द लिविंग ग्रुप, भगोड़ा, इसको निकलना है, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ से निकल गया, राइट. सो मैं बताऊँ आपको, ये जो अटैकिंग ग्रुप है ये किसी भी बिरादरी का हो सकता है. बिरादरी मीन्स टू से electrophile, nucleophile, free radical, whatever. But here we are going through the nucleophilic substitution reaction. So this is nucleophile. Here attacking group is nucleophile. And you know, one nucleophile will replace another nucleophile. One electrophile will replace another electrophile. One free radical will replace another free radical. So therefore, nucleophile and living group both are nucleophilic in character. Please note it down, please you all, and as you all understand, please reflect me, please convey me your understanding. Yes sir, I've got it, है ना. Yes, like. So see बच्चों, both nucleophile and living group are belongs to the same biradari, same chemical behavior. Both are nucleophilic in nature. So why this nucleophile replace this one? It's too easy to understand. Yeah, why too easy? Because stronger one, it's a very natural. देखो नेचुरल चीज क्या है बच्चों. या थैंक यू पवन एंड ऑल, अनुदीप, दिग्विजय एंड एवरीवन. प्राकृतिक चीज क्या है? हमारे अब्दुल कलाम साहब ने क्या बोला कि हमको अपने देश को ताकतवर बनाना है. जो ताकतवर होगा वो प्राउड फील करेगा, वो राज करेगा, वो आगे बढ़ेगा. इट्स वेरी ट्रू. कमज़ोर होगा वो कैसे? हम समाज क्यों बढ़ाते हैं? वाई वी मेक सोसाइटी, ताकि उस समाज में हम कुछ ऐसे नियम बना सकें कि जो कमज़ोर है, गरीब है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके साथ बुरा ना हो. तो हम कानून बना के, लेकिन प्राकृतिक नियम क्या है कि जो कमज़ोर हो गया उसको झेलना पड़ता है. इट्स नेचुरल लॉ. तो हम सोशल लॉ क्यों बनाते हैं कि अपने समाज में ये तय करें कि हमारे समाज में जो कमज़ोर है या गरीब है या ओल्ड एज है या कोई भी, उसको प्रॉब्लम ना हो, या जो जीव है बाकी मानव के अलावा, उनका हम ध्यान रख सकें नियम बना के. अदरवाइज नेचुरल टेंडेंसी देखो यहाँ यही है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो रूल करेगा. तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो करके अब रूल करने में आए कि तुम अच्छे नीयत के इंसान हो, अच्छे सोचने वाले हो, तो तुम अगर ताकतवर हो तो देश दुनिया सबका भला होगा. इससे भारत देश क्या कहता है कि भारत देश ताकतवर है अगर, तो दुनिया का भला होने वाला है, क्योंकि हम अच्छा सोचने वाले लोग हैं. इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बिनेवलेंट लोग हैं. यस. सो नाउ सी, मैं क्या बोला आपको कि बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, बट दिस वन रिप्लेसेस दिस वन, सब्स्टिट्यूट दिस वन, बिकॉज दिस वन इज stronger than this one. So हम क्या लिखेंगे? stronger nucleophile will replace weaker nucleophile, and weaker nucleophile will behave as a living group. Please note it down. Stronger nucleophile will replace weaker nucleophile, and weaker nucleophile will behave as a living group. Now बच्चों, ये it's a substrate, it's a living group, and here nucleophile will make attack. The question is that why nucleophile make attack, है ना? Because of any good reason, here delta plus character will develop or electron deficiency will be arises, whatever be the good reason. Okay, so now what will happen here? We have two electrons, bond pair of electrons, so this living group will take electrons. Okay, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गया, एंड न्यूक्लियोफाइल विल मेक अटैक ऑन दिस वन. सो हम लोग क्या समझेंगे बच्चों? हम लोग ये समझेंगे कि इस सबस्ट्रेट के पास, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इतनी सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है. वनली स्ट्रॉन्गर वन कैन रिप्लेस द वीकर वन. ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बड़े बड़े नहीं होते, कहानियाँ बड़ी नहीं होती हैं, उनसे सीख और उनका एप्लीकेशन बड़ा होता है. राइट. सो जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट विद, ये भाग जाएगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और रिएक्शन हो जाएगा. यू शुड मेक इट नोट
कि लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट विद बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के लिविंग ग्रुप भाग जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाट एसएन रिएक्शन ये हो गया हमारा। नाउ जो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। मैंने अभी यहाँ परिचय दिया आपको, किसका किसका परिचय दिया, सबस्ट्रेट क्या है, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड, अटैकिंग ग्रुप क्या है एंड लिविंग ग्रुप क्या है। ओके, नाउ रेट ऑफ एसएन रिएक्शन, रिएक्शन विल नोट कर लेना बच्चों, इसमें सिर्फ ये बताना मुझे कि कितना फास्ट अटैक होगा। सपोज ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के मैं बीच में ना आपको बहुत सारी चीज़ें बोलता जाऊंगा। ओहो ग्रेट ग्रेट गुलाम। एल्किल हैलाइड के जो रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स आर nucleophilic substitution reaction. Okay, most of the reactions, you know why? Because let's see बच्चों, X is more electronegative than C for मतलब ये कार्बन अटैच है, it will just pull electron towards itself, it develops delta negative, delta positive character, whatever I have just told you just right now. So it's become electrophilic, so nucleophile will attack here and X will take electron, departs by taking electron, bond pair of electron. So this is the reaction, how it takes place. So the rate of reaction is directly proportional to nucleophilicity, directly proportional to nucleophilicity. And this nucleophilicity I have already discussed with you all. I have discussed you about the nucleophilic character and nucleophilicity in previous class. Okay, so rate कितना तेज अटैक, कितना फास्ट अटैक हुआ, it all depends on the nucleophilic character of attacking group. Let's see what I mean. Suppose here RCl and we have to carry the reaction by NaBr and NaNH2, NaBr and NaNH2, and we have to discuss. Suppose the rate of reaction first case is R1 and in second case is R2. So can you tell me the which one will be higher, I mean more, R1 or R2? Yeah, please everyone. RCl, it's a alkyl chloride and NaBr reacts with the rate R1 and NaNH2 with R2. So which one will make a faster rate with higher rate of reaction? Yeah, Chanda, Vishwajit and all, please respond everyone. Shresht, great. Ankit, Anudeep. So you all are correct. You all are saying correct answer. That answer will be R2. Why? Because more the nucleophilicity, higher will be the rate of reaction. That's a great. Pawan, great beta. So here Br minus and this one is NH2 minus, and we all know that NH2 minus is stronger nucleophile than Br minus. In fact, OH minus strong nucleophile than Br minus. So R2 will be higher than R1. And what will be the product? We usually say here will be RNH2 and here it will be alkyl bromide. Yeah बच्चों, yeah, wow, great. So rate of reaction से हमारा जनरल आइडिया क्या हो गया? जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो फास्ट अटैक करेगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। नाउ लेट्स सी पॉइंट नंबर 2, बॉयज एंड गर्ल्स, अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, कम ऑन। सो in this reaction I have just taken it as an example, and why I have taken, because it's extensively used in our syllabus. So let's see, ये जो निकलता है ना, जो भागता है X माइनस, इट्स अ लिविंग ग्रुप। ये भाग के जो बनता है ना, क्या बना ये R प्लस प्लस X माइनस, एंड देन ऑन दिस R प्लस न्यूक्लियोफाइल विल मेक अटैक एंड हियर वी विल हैव R न्यूक्लियोफाइल। ओके, दिस इज हाउ रिएक्शन रियली प्रोसीड्स। सी, तो अब ये क्या है कि ये कितना तेजी से, कितना जल्दी भाग पाएगा। एज वी ऑल नो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन को लेके जा पाएगा।
और हम कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ हम जाना चाहते हैं, वहाँ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सिमिलरली अगर x माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इफ़ x माइनस इज स्टेबल, देन ये जल्दी जल्दी जाना चाहेगा, और इसके जाने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, लिविंग कैरेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, लिविंग कैरेक्टर। सो रेट ऑफ रिएक्शन, rate of SN reaction is directly proportional to living character of X minus. Yeah, is this is clear to all of you? Rate of SN reaction is directly proportional to living character of X minus. Great. तो बेटर द लिविंग कैरेक्टर, गुड लिविंग कैरेक्टर, तो उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप हो जाएगा। एंड दिस लिविंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस। बच्चों कम ऑन, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आज का हम लोग। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक्स माइनस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी टूट के उसे बनने चाहेगा। बोलो यस नो, कम ऑन एवरीवन। एक्स माइनस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना उसमें बनना चाहेगा और उतना उसका लिविंग कैरेक्टर अच्छा होगा। इसको बोलेंगे गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा, जिसमें एक्स माइनस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें खुश होगा एक्स माइनस, हैप्पी, आशीर्वाद दे रहा है आपको, वाह बल्ले बल्ले मज़ा आ गया। तो मोर द स्टेबल एक्स माइनस, मोर विल बेटर विल बी इट्स अ लिविंग कैरेक्टर। वाह ग्रेट, बढ़िया। निहारिका नायक एंड एवरीवन, रिमझिम, गुड। शशांक पांडे, गुड। तो मैंने क्या बोला बच्चों, अब हमको ये देखना है, सभी लोग बच्चों ध्यान समझेंगे कि x माइनस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करें। इफ़ वी कैन जज स्टेबिलिटी ऑफ x माइनस बाय यूजिंग डिफरेंट इफेक्ट्स दैट आई विल डिस्कस विद यू, है ना। इफ़ वी कैन, इट्स वेल एंड गुड। अगर हम नहीं जज कर पाते हैं, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को जज कर लेते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, है ना, अगर हम जज कर लेते हैं इट्स वेरी वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हैं तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे बच्चों इन दैट केस, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो देन व्हाट वी विल डू, हमेशा कंजुगेट एसिड बनाएंगे, HX। क्या बनाएंगे, कंजुगेट एसिड HX। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, जितना ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना ही इसका कंजुगेट बेस वीकर हो जाएगा। इट्स कॉमन, इट्स क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड बेस थियरी। सो स्ट्रॉन्गर एसिड विल हैव वीकर कंजुगेट बेस। वीकर मीन्स इट विल नॉट हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट, least reactive, more stable, and therefore living group will be good. So conclusively I will just convey you that rate of reaction is directly proportional to living character of X minus and is directly proportional to acidic strength of, is directly proportional to acidic strength of HX. Like let's take an example. Suppose we have to discuss I minus and Cl minus, about the living character of I minus and Cl minus, and we don't know about this living character of I minus Cl minus. So and in fact we are confused with their stability. So we just suddenly prepare their conjugate acid HI and here HCl. I have already discussed with you that HI is the stronger acid, and if HI is a stronger acid, it means what? I minus will be more stable. It means what? I minus is the good living group. Wow, great. Is that clear to all of you? Everyone, please say yes or no. निहारिका, वेरी गुड। धीरज कुमार, गड़बड़ कर दिए बेटा, Cl माइनस पूर हो जाएगा। HCl वीक एसिड है, तो Cl माइनस वीक एसिड का जो बेटा होगा वो बेकार लिविंग ग्रुप होगा। सुष्मिता, अश्विन, अनंत, गुड। हियर कुलदीप, ऋतिक, एवरीवन, रूपाली। सो श्रेया, तो व्हाट आई हैव सेड कि स्ट्रॉन्गर एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल होगा। ये मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनान में भी पढ़ाया है। स्ट्रॉन्गर एसिड कंजुगेट बेस स्टेबल होगा एंड देयरफॉर इट विल बी द गुड लिविंग ग्रुप। ओके, नाउ ये मैंने आपको पढ़ाया पॉइंट नंबर 2।
अभी मैंने क्या बताया आपको, लिविंग कैरेक्टर, लिविंग ग्रुप एंड रेट ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड, जिसमें एग्जांपल दूं आपको, सपोज मैं कहूँ कि RCl एंड RBr, इन दोनों को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ यार KOH से, इट्स ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, KOH से मैं रिएक्ट करा रहा हूँ, राइट। और मुझे पोर्ट के विषय में बात मुझे कहना है यहाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज R1 एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज R2। प्लीज से एवरीवन, which one will be higher, R1 or R2? Here substrate is same, attacking group is same, only leaving groups are different. So please, which one will have higher value, R1 or R2? Come on everyone. Vishwajit, good. बहुत अच्छे। R2 will be higher, you know, because ये it's a better living group, because it's better living group. So either we can compare, everyone good, बहुत अच्छे पवन, निहारिका, रंजना. So see, here attacking groups are same, substrates are same, only living groups are different. So more the living character and better will be the more will be the rate of reaction. So now see, the point number 3 about the rate of reaction. What I have discussed with you about the mechanism, that first this bond will break. You know, first this bond will break. A living group will consume, will take bond pairs of electron with it, and here we will have R plus and X minus. Till now we have discussed with the stability of X minus. Now let's focus on stability of R plus 2. If R plus will be stable, R plus is nothing but carbocation. So if R plus will be stable, then it will have tendency to form in a fast way, in hasty way, yeah, in swift way. So more will be the stability of R plus, more will be the higher will be the rate of reaction. So rate of reaction is directly proportional to stability of carbocation R plus. ये सारी बातों पे सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में आपसे। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। ग्रेट। नाउ तो इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा पिद्दी वर्ग एग्जांपल। लेट्स सी, सपोज यहाँ मैंने रखा Cl और मैं रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH से, ओके। यहाँ मैंने लिया Cl एंड मैं रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH से। If we want to have a nucleophilic reaction, we just take here aqueous NaOH, aqueous। अगर हम इसको एल्कोहलिक या और कंसनट्रेट लेंगे, देन उसका बेसिक कैरेक्टर आने लग जाएगा। देन रेदर देन हैविंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वी विल हैव एलिमिनेशन रिएक्शन। सो टू चेक, टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ कंफ्यूजन और competency with competition with elimination reaction, here we take aqueous medium, okay। Now see, so क्या होने वाला है, OH minus as a nucleophile will attack here. So what I have told you, everything is same except, you know, Cl, in fact living groups are same except just the substrate. So here we will have carbocation, this one, and here this one. So which carbocation will be more stable, first or second? This one is first, this one is second. Which carbocation, here we have rate as a R1, here we have rate as a R2. Which carbocation is more stable, first or second? आज मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, है ना। और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका है। ग्रेट, बड़ा अच्छा सीख रहे हो आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, सेकेंड में मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जो कि पाई बॉन्ड से कंजुगेशन से पूरा हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे वो डेफिशिएंसी पूरा नहीं हो पा रहा है। सो सेकेंड इज मोर स्टेबल एंड देयरफॉर R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ओके।
आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई। हाँ, समझ में क्या आ गई, आप लोगों ने सही सही उत्तर कर दिया। चलिए मैं कुछ और थोड़ी बातें कर लूँ आपसे, थोड़ी थोड़ी बातें करते रहता हूँ। हाँ, घर जाके आपको बहुत काम करना है। मैंने जो पढ़ाया मैं बहुत ज़्यादा अंदर घुसते चला जा रहा हूँ। सो यू हैव टू अगेन सी, यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, आइडिया, थिंक ओवर दैट, ट्राई टू ट्रैक मी कि मैंने क्या क्या बोला, ट्राई टू गो थ्रू दोज एग्जाम्पल्स, राइट? ओके। एंड हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन कल आपके वेब पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। ओके, एल1 एस्पायर पे अपलोड हो जाएगा, आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। नाउ सी, मैं आपसे बातें कर, कुछ और बातें करनी है हल्की फुल्की मुझे। सी बच्चों, हियर we are using this reactant and this bond has to be broken down before the attack of nucleophile. So if this bond will be stronger, think over, if this bond will be strong, if this bond Rx bond will be strong, so it will hinder, it will cause reaction, friction to the reaction. Yeah, so if this bond will be strong, it will cause friction to the reaction, it will hinder the rate of reaction, it will cause blockage to the reaction. So we should say rate of reaction is inversely proportional to bond strength of Rx bond. Rx bond, yes, no बच्चों? Means stronger this bond, lesser will be the reactivity. Okay, weaker the bond, more will be the reactivity. Okay, आशुतोष कैसे ना? लेट्स सी, अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा बेटा, टूटेगा ही नहीं तो ये अटैक कहाँ से करेगा? ये टूटने से मना कर देगी, ना हम नहीं टूटेंगे, जो करना हो कर लो, तो रिएक्शन कहाँ से होगा? और पता है इस बात के ऊपर एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। मैंने क्या बोला, अगर इसका बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, ये नहीं टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, लेट्स सी, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। ये देखो, ओहो ग्रेट, वेरी नाइस एग्जाम्पल। मुझे यहाँ अटैक करना है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने क्या लिया यहाँ पर, KOH, व्हाट विल टेक हियर, एक्वस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू व्हाई वी आर टेकिंग एक्वस। सो मैं आशुतोष बेटा उसी बात को एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ, KOH एक्वस। नाउ सी, इसमें क्या बोल रहा हूँ, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा तब तो रिएक्शन करेगा। कौन? न्यूक्लियोफाइल। कौन है यहाँ? OH माइनस। सो देखो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, लेट्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हियर कार्बन इज sp2 हाइब्रिड एंड दिस क्लोरीन हैविंग 3 लोन पेयर्स. One pair of lone pairs will involve in delocalization and therefore its hybridization will be sp2. So sp2 hybrid, sp2 hybrid, these two are sp2 hybrid, and here it's sp3 and this one is also sp3. So this one, here we have sp3 hybrid, and we all know that sp3 hybrid orbitals are longer in size, bond length will be more, bond strength will be poor, weak. Okay, so what I have conveyed to you is that sp3 in this case bond length will be more, means first and second. So you can say bond length of first will be more than second because it's sp3 hybrid, orbitals will be larger in size. sp2 hybrid, orbitals will be smaller in size. This we have seen in hybridization. Yeah, everyone. So this bond will be stronger. This bond, yeah, great बच्चों. This bond will be stronger. और बताऊं मैं आपको क्या बोलते हैं इसको हम लोग जब डायरेक्ट बेंजीन लिंक से लगा हो, जैसे क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ARX, है ना, AR फॉर एरोमेटिक ग्रुप एंड X. ओके, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एरिल हैलाइड. एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड. तो एरिल हैलाइड ये इतना मजबूत हो जाता है. आई विल जस्ट गिव यू सम मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस. मैं कुछ और बातें आपसे कर लेता हूँ. लेट्स सी बच्चों,
यहाँ पे x है, x नहीं, यहाँ Cl एग्जैक्टली है। यहाँ Cl है। मैं आपको बताऊं, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट दिस लोन पेयर विल टेक पार्ट इन delocalization. Later on I will tell you that while delocalization this lone pair becomes pi bond and pi bonds become lone pair, and therefore यहाँ double bond character आ जाता है. Let me draw it. It's a Cl plus minus double bond. So you can see here double bond character. So because of double bond character, its bond strength is even more. बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि टूटता ही नहीं है। क्या रिएक्शन करो, गुस्सा आ गया, आंख दिखा रहा है, क्या औकात में रहो। सो यहाँ हम लिखेंगे कि नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? ये बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है। बॉन्ड टूटेगा तब तो रिएक्शन होगा भाई। तो हम लोग क्या याद कर लेते हैं बच्चों? कम ऑन, यू राइट एवरीवन। एरिल हैलाइड डज नॉट has tendency for SN reactions. एरिल हैलाइड SN रिएक्शंस देना नहीं चाहते हैं। कि क्यों? कि वो sp2 हाइब्रिड है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात क्या बोलोगे? वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और ये नोट कर लेना है सब, ये पहले चैप्टर में है आप लोगों के। और तीसरी बात क्या बोलोगे आप लोग? व्हाट यू विल से थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर हम तोड़ते भी हैं, दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेरी वेरी अनस्टेबल। इट इज वेरी अनस्टेबल, बहुत ही कम स्टेबल है ना, इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा। इट्स वेरी अनस्टेबल। जो ये बनना ही नहीं चाहता, जब ये टूटना ही नहीं चाहता, जब ये sp2 है, बॉन्ड लेंथ जो छोटा कर दिया है, तो रिएक्शन नहीं देता है। ग्रेट निहारिका। सो हम क्या बोलेंगे कि एरिल हैलाइड्स डज नॉट हैज टेंडेंसी टू गिव SN रिएक्शंस, जबकि एल्किल हैलाइड्स जो हैं, ये क्या है? ये एल्किल हैलाइड है। ये तो इसी खानदान की इसकी पहचान है। कहते हैं ना, हमारे खानदान की पहचान है कि हमारे घर में सब लोग बड़े अच्छे हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं, पहचान है हमारे यहाँ की। लाइकवाइज ये इसकी पहचान है क्या? ये SN रिएक्शंस करते हैं। कौन? एल्किल हैलाइड। सो एल्किल हैलाइड के इसको पहचान, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ पहचान, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। हम बोलेंगे SN रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है भाई, वो SN रिएक्शन वो करना चाहते हैं, उनकी नीयत है, वो चाहत है। जबकि एरिल हैलाइड में रिएक्टिविटी की बात ही नहीं किया, वो रिएक्शन देना ही नहीं चाहते, देते ही नहीं है। अगर आपने बना दिया तो क्वेश्चन में एग्जाम में आया तो आपको नंबर मिलेंगे -1। चलिए मैं अब इसको समेट लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी नहीं करोगे रिएक्शन, SN रिएक्शन एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड से SN रिएक्शन हम करवा लेते हैं जबरदस्ती, मार पीट के। कहीं रिएक्शन नहीं करोगे, दुम 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 दुम, अभी भी नहीं करोगे, फिर मारा उसको, तो जबरदस्ती, नॉट स्पॉन्टेनियसली, नॉट बाय द नेचर ऑफ, नॉट बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिल हैलाइड। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। वाओ, directly proportional to nucleophilicity. Second, living character. Third, stability of R plus. And fourth, inversely proportional to bond strength of RX bond. So these all points we should have in our mind. और इस पे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों? चंदा दीदी कह रही है यस सर। कम ऑन एवरीवन, टेल मी। रिमझिम, अमन कुमार, ऋतिक जो है हंसने वाला दांत निकाला हुआ है, बहुत बढ़िया ऋतिक, दिग्विजय एंड ऑल। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई महेश। महेश देखो बहुत दिन बाद मुझे दिखाई पड़ा है।
आंसर नहीं करता, रश्मि आर्या, ग्रेट. सो लेट्स ट्राई सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. ओके, ग्रेट. चलिए सवाल ट्राई करते हैं. चेक योर कॉन्सेप्ट्स, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस. कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, ये क्वेश्चन ट्राई करिए. टाइम 30 सेकंड्स मिलेंगे, नॉट मोर देन दैट. 30 सेकंड्स बहुत ज़्यादा हैं. इस रिएक्शन को कंप्लीट करना. जो टाइम स्टार्ट्स नाउ. करो भाई, जल्दी करो दोस्तों. जस्ट राइट मी यस और नो, यू हैव डन इट. रिएक्शन क्या बन गया? इफ यू कैन प्लेस योर आंसर हियर, दैट विल बी ब्यूटीफुल. अदरवाइज यू कैन से कम ऑन. निहारिका नायक. Okay, so please tell any one of you why no, or you can say all of you, please place your answer. Why no reaction? Yeah, come on. Why no reaction? हाँ, कुलदीप, अमन, ऋतिक, एवरीवन. Why विशाल? Why no reaction? ग्रेट. अमित, बहुत अच्छे. बिकॉज Br माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस. तो ये बकरी जो है आए और कहे मुझे आज शेर का शिकार करना है, ये बात नहीं समझ में आएगा. यस नो? हाँ, वेरी गुड विश्वजीत एंड निहारिका. सो बकरी जो है शेर का शिकार नहीं कर सकती, तो Cl माइनस Br माइनस को रिप्लेस नहीं कर सकता. यू ऑल आर करेक्ट. बहुत अच्छे, ग्रेट. कम ऑन, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. दिस वन. I have 6 to 7 reactions that you have to carry out. ये सारे आपके चैप्टर्स के हैं. बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये सारे क्वेश्चंस 12th क्लास के हैं. एनसीईआरटी 12th क्लास के पहले चैप्टर्स के रिएक्शंस हैं. सी, आपको कंप्लीट करना है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 45 सेकंड्स देता हूँ मैं. टाइम कम पड़ने पर दिक्कत हो जाएगी. कम ऑन, बताओ भाई. अनंत, बहुत अच्छे. निहारिका, बहुत अच्छे. कुलदीप, अमन, वेरी नाइस टू ऑल ऑफ यू. ग्रेट. अश्विन, लास्ट 15 सेकेंड्स. बहुत अच्छे. ग्रेट बच्चों. चलिए, मैं आई जस्ट डिस्कस समथिंग अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन एंड यू ऑल हैव गिवन राइट आंसर. वेरी गुड. यू ऑल हैव गिवन राइट आंसर. बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे. तो आई विल जस्ट डिस्कस सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम. प्लीज फोकस. First, I minus is stronger nucleophile than Br minus, and therefore reaction will take place, and therefore here we will have I and plus KBr. Okay, so now I will discuss with you why. First thing, just everyone note it. Along with solving problems, we should take care of some of the very precious points of that problem. वो क्या concept दे रहा है, concept delivered by that problem, है ना. We should just consider that also. So see here, first point is that जब हम लोग रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो RCl और RBr को बनाना आसान होता है लेबोरेटरी में या इंडस्ट्रियली. RCl, RBr, we can form RCl and RBr, but we can prepare this alkyl chloride and bromide directly, but we could not do the same thing for alkyl fluoride and alkyl iodide.
एल्किल फ्लोराइड और आयोडाइड को हम लोग डायरेक्टली बना नहीं सकते हैं, बट इसको हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। इसके रीज़न जो है दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। ये 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, 11th क्लास के एनसीईआरटी में बड़े अच्छे डिस्कस किया हुआ है। बट फॉर नाउ यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड कि वी कुड नॉट प्रिपेयर दीज डायरेक्टली, बट वी कैन डू फॉर RCl एंड RBr। देयरफॉर एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए एक साइंटिस्ट थे फिनकल्स्टीन साहब। फिनकल्स्टीन ये इन्होंने एक रिएक्शन दिया, उसको बोलते हैं फिनकल्स्टीन रिएक्शन। उसमें इन्होंने कहा कि हम इसको ट्रीट करते हैं NaI से या फिर KI से, दोनों में से कोई एक ले लो, NaI और KI, और रिएक्शन करने पर हमको एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिनकल्स्टीन रिएक्शन। ओके, कम ऑन एवरीवन, पहले तो ये नोट कर लेते हैं हम लोग कि फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि RCl RBr कैन प्रिपेयर डायरेक्टली इन इंडस्ट्री और लेबोरेटरी, बट वी कुड नॉट हैव एल्किल फ्लोराइड एंड आयोडाइड डायरेक्टली। ओके, आई थिंक यू ऑल हैव नोटेड डाउन नाउ। And so just prepare alkyl iodide. A scientist named as Finkelstein had given a reaction, NaI or with NaI or KI. Great, बहुत अच्छे पवन। Now दूसरा important point ये है, कि NaI की रिएक्टिविटी इज मच मोर देन KI के तुलना में NaI की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, KI की रिएक्टिविटी कम होती है। रीज़न बोलते हैं कि Na और I के बीच में साइज डिफरेंस ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग मोर साइज डिफरेंस वो उनकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। सो यहाँ I माइनस जल्दी से मिल जाता है, अवेलेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, सो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, राइट। So NaI is better at considering the rate of reaction. If we need the rate of reaction at the moderate rate, we will just take KI. Now, why we have taken here acetone? मैं इन सारी बातों को धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करते जाओ। मैं 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, सो प्लीज यू ऑल फोकस, नोट करते रहना इसको। Now, why we have taken acetone? बच्चों बताऊँ मैं आपको, this one is acetone. एसीटोन लिटिल बिट पोलर होता है। ये एसीटोन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी है सॉल्वेंट, अगर हम देखें NaCl या NaBr, इनके बीच में ये सॉल्यूट हुए, ये एसीटोन में नहीं घुलते हैं। NaBr एंड NaCl डू नॉट सॉल्युबल इन एसीटोन में नहीं घुलते हैं, बिकॉज सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया। कोई तभी घुलता है, कोई किसी में, मैं आपके घर घुलने आया हूँ, मैं आपके घर सबसे मिलने आया हूँ, घुलने आया हूँ, इट विल बी पॉसिबल ओनली इफ यू ऑल अलाउ मी टू डू सो। अगर मैं ना घुलना चाहूँ या आप मुझे ना घोलना चाहो या अपने घर में मुझे सम्मिलित ना करना चाहो तो हम नहीं कर सकते। तो कोई कब घुलेगा? जब एक बात हो, क्या जो घुलने और घोलने वाले हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट की तुलना में ज़्यादा हो। ओके, आई थिंक आपको पता होगा। सो बच्चों यहाँ पर ये प्लस माइनस ये सोल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, एंड देयरफॉर ये उसमें नहीं घुलता, इनसॉल्युबल रह जाएगा। नोट कर लो। जबकि ये जो आयोडाइड है ये घुल जाता है। तो जब रिएक्शन करते हैं हम लोग तो यहाँ इसके अलावा हमें क्या मिलता है? KBr या KCl, ये नीचे बैठ जाएगा और उसमें हमको ये अलग से मिल जाएगा, तो सेपरेट हो जाता है। तो वाई वी हैव टेकन एसीटोन एज ए सोल्यूशन? बिकॉज सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड आर इनसॉल्युबल in acetone, therefore they will be obtained as a precipitate while alkyl iodide will remains in solution. Got it? बोलो समझ में आया कि नहीं आपको? ये सारी बहुत ही अंदर की इनसाइट बातें ऑफ फिनकल्स्टीन रिएक्शन।
Finckelstein reaction is about the formation of alkyl iodide. This reaction take place because I minus is stronger nucleophile than Cl minus and Br minus. We required this reaction because alkyl iodide could not formed by direct methods. Okay, so it's a SN reaction. Great, great, बढ़िया. चलो नेक्स्ट, अब ये सवाल ट्राई करो. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. टाइम देता हूँ आपको मैं इसके लिए. टाइम 3 सवाल है तो 2 मिनट्स है ना. ध्यान से करना, ये सवाल सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं. मैं आपको 12th क्लास के अग्नि में घुस किया बड़े आराम से. कम ऑन एवरीवन, वी हैव 2 मिनट्स. हाँ भाई, 1 मिनट ओवर हो गया है. कम ऑन. ग्रेट, गुड. पवन, शशांक, चंदा, दिग्विजय, निहारिका, श्रेया, गुड. विशाल, लास्ट 20 सेकेंड्स. कम ऑन एवरीवन. फाइव, 4, 3, 2, 1 and 0. टाइम इज ओवर. ओके, सो मैं आपको फिर से ये बात नोटिस कराना चाहूँगा कि जितनी चीज़ें मैं सवाल के अंदर की बोल रहा हूँ, सवाल मेरे लिए एक माध्यम होता है. सवाल इज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर मी टू टीच यू, टू कन्वे यू द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दोज प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आप इन सभी को अलग से नोट करते जाइएगा. देर आर 2 वेज. आइदर मैं चैप्टर का नाम दूँ, फिनकल्स्टीन रिएक्शन, वहाँ उसको सेपरेटली पढ़ाऊँ, या मैं क्वेश्चन पढ़ा दूँ. आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, और जो मैं सोचता हूँ वही आपके लिए, तो वही करना ही आपको, कि ये बेटर वे होता है कि प्रॉब्लम के साथ हम उसको टैकल कर लें. राइट, तो आप जो भी कोई टीचर पढ़ाए, या स्पेशली जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो साथ में चीज़ें हम समझाते रहते हैं, उसको आप लोग नोट करते चले जाना है. राइट बच्चों, ग्रेट. सो कॉमन, आपने ये कर लिया है. यहाँ पे हम लोग मानते हैं, यहाँ क्या मिलेगा हमको? एल्कोहल. वाह, ये इथेनॉल, शराब मिल गया यार. गंदा चीज़ है, लेकिन क्या किया जाए, केमिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ता हम लोगों को. ये एल्कोहल है, शराब है, इथेनॉल, इसी को लोग पीते हैं, है ना. ये सोचने की क्षमता कम कर देता है, रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है. बाय द वे देखो, यहाँ पे NaSH है बच्चों, Na+S-, ये अटैक करेगा और यहाँ में क्या मिल जाएगा? थायोल, है ना. अब इन दोनों में अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो विल डेफिनेटली से इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, बिकॉज S- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, अब देखो यहाँ बात करते हैं. वी नो कि CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड, इट्स एसिड. और सोडियम मेटल है. मेटल क्या होता है? बेस. क्यों? ये इलेक्ट्रॉन देता है. कैसे? Na++ इलेक्ट्रॉन. आपको पता है ना कि जब भी किसी मेटल को हम लोग किसी एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है. यू नो भाई, एसिड वो होगा जो H+ देगा, H+, एंड मेटल विल गिव इलेक्ट्रॉन. सो H++ इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ हाइड्रोजन गैस. राइट,
सो सिमिलरली हियर वी कैन से ये बन जाएगा CH3COO माइनस COO माइनस H+ निकल गया और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बनेगा हाफ H2 गैस निकल गया और वो Na+। यू कैन आप CH3CO माइनस Na+ डायरेक्ट लिख सकते हो दोनों मिला करके, बट सोल्यूशन में दोनों सेपरेट ही रहते हैं, आयंस रहते हैं, बिकॉज देयर वी हैव आयनिक बॉन्ड नॉट कोवैलेंट बॉन्ड। सो इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट देम इन दिस फैशन, CH3CO माइनस और Na+, नॉट टूगेदर, बिकॉज इन सोल्यूशन दे विल बी सेपरेटेड, वो सेपरेट ही रहेंगे, दे विल बी सेपरेट, वो अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, बिकॉज दे आर आयनिक कंपाउंड्स, दे हैव आयनिक बॉन्डिंग। ओके, सो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों, दैट हियर वी विल हैव अ न्यूक्लियोफाइल CH3COO माइनस, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक हियर। अब देखो मजेदार चीज क्या होने वाला है, ये वहां अटैक करेगा, बन जाएगा OCOCH3। अरे बाप रे बाप बच्चों, क्या बन गया, CH3COOR, है ना, क्या नाम देते हो इसको, क्या हो गया, एथिल एल्किल एल्केनोएट, एथिल इथेनोएट, क्या हो गया, ये एस्टर है, ये एस्टर जो अच्छा स्मेल रखता है, अच्छा नहीं, इसको बोलते हैं फ्रूटी स्मेल। जब बगीचे में फल उल पकता है, जो बगीचे का स्मेल होता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रूटी स्मेल। तो ये फ्रूटी स्मेल लगता है, गुड स्मेल लेता है, एस्टर बन गया, एस्टिफिकेशन। देखो हमने एसन रिएक्शन का यूज करके, मैं क्या बता रहा हूँ, देखो एसन रिएक्शन का यूज करके पहले मैंने बताया एल्किल आयोडाइड बनाया, फिर उसी का उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाया आपको, उसी एसन रिएक्शन से यहाँ में रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया और बताया कि यहाँ थायोल बना, यहाँ एल्कोहल बना, और यहाँ क्या कर दिया हमने, एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर बन गया, कैसे, एसन रिएक्शन से। एंड वी हैव सीन इन प्रीवियस क्लास दैट CH3CO minus is a poor nucleophile. So if we have rate of reaction R1, R2 and R3, so we will say कि सबसे कम रेट किसका होगा बच्चों, R3 का, एक गधा न्यूक्लियोफाइल है, एंड देन R1 एंड द हाईएस्ट विल बी R2। इज इट ओके बच्चों, समझ में आ गया? प्लीज कन्वे योर एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं बिटिया, जरूरी है कि हमने सीखा कि नहीं, या ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई अनदर प्रॉब्लम, द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे ना, में अब आएगा, आ गया, ग्रेट। ये टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, मैं पता है, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ना पढ़ाऊँ, समझा के पढ़ाऊँ ताकि ज़्यादा चीज़ें कवर हों। कम ऑन, सो कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, ये कंप्लीट करिए आप लोग। टाइम देता हूँ आपको मैं 2 मिनट्स का, अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबके रिस्पॉन्स आने जरूरी हैं, यू ऑल हैव टू रिस्पॉन्ड, you all have to place your answer here. Right or wrong, it's another concern, but answer should be given, because I am just find मैं बहुत सारे बच्चों के नाम यहाँ ढूंढना चाह रहा हूँ, उनके भी आंसर में नाम आए हैं, तो उनके नाम नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। सो प्लीज सेंड योर आंसर हियर। One minute is over now. बढ़िया, बहुत अच्छे, लास्ट 15 सेकेंड्स।
बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। बहुत अच्छे बच्चों। नाउ लेट्स सी। चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहनी चाहिए ना। मैं हूँ तो पटाखा बजते रहने चाहिए, है कि नहीं? पटाखा नॉट लिटरली मीन पटाखा, आई मीन कॉन्सेप्ट। बच्चे जानते हो AG प्लस जो है, क्या बोलते हैं इसको? PIGC। इसको ना तुम जो है अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओ तो ये कैसे ऐसे ऐसे एक बक्सा बना लिया करो, ऐसे या ऐसे कुछ। इट इज़ कॉल्ड इंटरटेनमेंट बॉक्स। अब इसके अंदर इसको रख लिया करो। सर AG प्लस तो क्या बोल, यहाँ लिखो ऐसे ही जैसे लिखा मैंने कि AG प्लस। इसको देखो तुम्हें याद हो जाएगा, है ना? याद करने के लिए कुछ नौटंकी करनी है आपको, कुछ जोकड़ी करने के याद हो जाए। AG प्लस क्या है ये? PIGC, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन जानते हो क्या आप लोग? और जिसके पास ये होता है उसका हाई पोलराइजिंग पावर हो जाएगा। हाई पोलराइजिंग पावर हो जाएगा। और हाई पोलराइजिंग पावर होती ही क्या हो जाएगा? वो कोवैलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर। कहो सर ये बातें क्यों बताना शुरू कर दिया आपने? भाई देवे अभी तो तुमको ये बताया कि इंटरटेनमेंट बॉक्स बनाओ, और ये एक चुटकुला वाला बॉक्स, उसमें AG प्लस को रख दिया और ये सब कर लिया आपने, तो आपको ये याद रहेगा यार। अब आगे आगे कहानी सकते हैं हम लोग। मैं कनेक्टेड बातें ही करता रहता हूँ हमेशा। नाउ सी, तो AgCN AgCN अगर इसके, या मैं KCN की बात करूं, दोनों में क्या अंतर है पता है आपको? ये AgCN दोनों एक ही चीज़ नहीं है बच्चों। देखो AgC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। ये आयनिक कंपाउंड है, ये ऐसा है, ये बने K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस। यहाँ कार्बन पे माइनस चार्ज है, कार्बन के पास लोन पेयर है। यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट यहाँ पे लोन पेयर सिर्फ नाइट्रोजन के पास है। वाई? बिकॉज Ag प्लस, अब आगे बात, Ag प्लस हैज PIGC configuration, electronic configuration, pseudo inert gas electronic configuration, and therefore it has a high polarizing power and high covalent character, and therefore यहाँ covalent bond है, therefore यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एटम कौन होगा बच्चों? नाइट्रोजन। ध्यान रखो, सवाल इससे पूछा जाता है। nucleophilic atom will be nitrogen. Now in this case here we have two nucleophilic atom, carbon and nitrogen, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एटम हो जाए जिस मॉलिक्यूल में, स्पीसीज में, लेकिन काम सिर्फ एक करे। एक से ज़्यादा दांत रखा हो लेकिन काम सिर्फ एक करे, दैट विल बी नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, दैट विल बी नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एमबी मतलब मोर देन वन, मोर देन वन, दांत एक से ज़्यादा, बट न्यूक्लियोफाइल सिर्फ एक है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर होगा? कार्बन। तो अगर जिसको अटैक करना होगा तो हाइयर टेंडेंसी किसकी होगी? कार्बन की होगी, बट अटैक नाइट्रोजन भी कर सकता है, बट यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन अटैक करेगा। बाय द वे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने इस बात को नोट कर लिया होगा। ऐसा ही एग्जाम्पल जो है, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। AgNO2 और KONO2, K प्लस, देखो इन दोनों का फॉर्मूला एक ही टाइप लगता है, KNO2 AgNO2, बट इसमें न्यूक्लियोफिलिक एटम नाइट्रोजन और यहाँ कौन होता है? ऑक्सीजन। ये एम्बीडेंटेड दोनों ही हैं, बट न्यूट्रल नाइट्रोजन इज मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल ऑक्सीजन, बट O माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल नाइट्रोजन। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे कौन न्यूक्लियोफाइल से बिहेव करेगा? नाइट्रोजन। मतलब अगर इसको RX से अटैक करोगे आप लोग, यहाँ मिलेगा आपको RON डबल बॉन्ड, नहीं सॉरी, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। मिलेगा RN नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा। बट इसको अटैक करोगे अगर आप RX से, यहाँ O माइनस अटैक करेगा, एंड हियर वी विल हैव RON डबल बॉन्ड O। आप देख पा रहे हो, वर्ड बदल गया। सो पे फोकस,
इसको अलग से नोट कर लो, इंटरटेनमेंट बॉक्स में डाल लो, इसको भूलना नहीं है, सब चीज़ों को कभी नहीं भूलना है और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी हियर, लेट्स सी फॉर लास्ट कंसर्न, Ag2O ड्राई है, ये सूखा हुआ है, ये ऑक्सीजन है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा ईथर। यू में आस्क कि सर आपने दिया तो एक ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और दे का बहुत मतलब नहीं होता है, वी शुड अंडरस्टैंड कि कितना कर सकता है। ये 2 अटैक कर देगा और 2 AgCl बाहर निकल जाएगा। जब ये मॉइस्ट लेते हैं, आर्द्र लेते हैं, इट विल बिकम्स AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। गलती किए हो भी तो कोई बात नहीं है, सीखने के लिए कर रहे हैं हम लोग, दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अटैक करेगा और बन जाएगा OH। ड्राई और मॉइस्ट में अंतर देखो, यहाँ देखो ये बच्चों 3 एक और रिएक्शन है, ये गलत हो गया, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा शुरुआत से ही, ठीक है। आज टाइम कम है, दूसरी क्लास है, तो क्लास है ना किसी, मैं दूसरों के टाइम को नहीं इंक्रोचमेंट नहीं करता हूँ, छोड़ना पड़ेगा, राइट। ये 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सेपरेट हैं, आप घर पर ट्राई करके आना। एक में इसको सोडियम स्ट्रीट किया गया है, इट इज़ नोन एज उर्ज रिएक्शन, आप सेपरेटली इसको पढ़ लेना अच्छे से, मैं अगली क्लास में इसके विषय में बातें करूँगा। एंड दिस इज गिगनार रिएजेंट that we have discussed today, okay. So I will just take this reaction in next lecture tomorrow, until you just go through these contents again. आप इनको ध्यान से पढ़िए, सीखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, थैंक यू।